হেল্ল' এভৰিৱান, আজি ইউথৰ আমি যোনটো পডকাষ্ট ছিৰিজ হয় সেইটো বস্তু আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ মাজত আছে এজন ভেৰি স্পেচিয়েল গেষ্ট টু বি অনেষ্ট। তেখেতৰ বহুত ফেন আছে, বহুত ফেন ফলোয়িং আছে। হি ইজ আ এক্সাম্পল হিমছেল্ফ এণ্ড আই ডোণ্ট থিংক মই তেখেতৰ বিষয়ে বেছি এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব। চ' লেটছ ৱেলকাম দ্য মেন, দ্য পাৰ্চন, আনন্দ মিশ্ৰা ছাৰ হিমছেল্ফ। ৱেলকাম ছাৰ। Thank you, Namunil. Thanks. So, how are you, sir? How have you been? I've been really fantastic, amazing. In fact, I believe with each passing day we are more matured. Correct, sir. So I'm feeling much better. And now you sitting in front, I'm feeling better. I was very tense just before they were asking me, how are you feeling before the podcast? I said, I'm very, very afraid, yaar. बहुत डर लग रहा है अभी नवनील क्या मेरा करेगा पता नहीं. So afraid of me? Yeah, afraid of you यार, afraid of your questions. All right, sir. Nothing that ऐसा कुछ नहीं होगा. It will be a good and simple one. Thank you so Means, much. क्या होता है कि बहुत लोग होते हैं ना आपको सुनना चाहते हैं. Right. So we are trying to convey that to those people. Okay. So bilingual, sir. Assamese, Yeah. English, Everything. and maybe Hindi sometimes. Everything. You can bring in whatever languages you know and try to cope up with that. That's great, sir. Okay, sir. An IPS, a fantastic guitarist, a passionate motorcycle rider. You also hold a black belt. Is there anything that I've missed out in you? And how do you manage to do so much of thing together? Sir? Right. Normally it's like this. देखो कि it's about ये passionate जो है ना, passionate is I believe a personality trait. So you'll find this passion in whatever I do. Okay, if I'm playing guitar, if I'm biking, I'm painting, I'm writing poetry, whatever I'm doing, you know. So this passion part is part of it. So there's nothing special about the passion. Yes, I try to do whatever comes in front, you know. It's not limited to guitar and bike. It extends to even some sketching, some painting, some caricature drawings, some poetry, some singing, some writing, some composing, you know, even gardening sometimes, trying a hand in the kitchen also. Wow. So try to do whatever is possible through the human body. So whatever is possible, and definitely I'm into a lot of sports and adventure and thrill-seeking physical activities. So a lot of things to be done because एक ही जिंदगी है, सब इसमें ही करना है. So इसी में करना है. That's wonderful, sir. We have seen that in social media. आपका social media life में तो ये सब देखा ही है. You are there are many people who admire you for all the things that you have done so far and how you live your life. The charisma that you carry, a lot of people are fan of that, sir. So let me ask you, sir, what was your childhood like? And क्या ये IPS वाला thing, this IPS was into your life right from the beginning कि मुझे बनना ही एक दिन. So please take us back, sir. Right, Naman. Childhood was a normal childhood, you know. Like I remember as a child, I'm still, I believe, I was very introvert. Okay. You know? Many people So might, doesn't seem like that. Yeah, that's what. I come across, I'll tell you why it is. Okay, you know? sir. And perhaps this is a lesson to be taken by many people like me. You know? All right, sir. I'm otherwise an introvert person, basically a shy person, and that's why many people, like especially like who are, you know, higher ups, and they find it difficult to understand me because actually I'm introvert and shy, and I respect authority a lot. Right, sir. By all means, I respect by जो बचपन से सिखाया ना कि बड़ों की इज्जत करना, ये कूट के भरा हुआ है. Correct, sir. तो somewhere because of this बचपन से ना, you won't believe, as a child I was a person कि पहले मेरे तो खैर पापा है, आप पूछ सकते हैं कभी हाँ, sir. कि मैं जूते जब उतारता था ना, हाँ, sir. तो फिर जूतों को प्रणाम करता था. Okay. You know, मतलब इस लेवल का लॉ अबाइडिंग बना दिया गया हूँ मैं. कि घर से कि अगर जूते होते हैं, जूते पैर लग गए तो पैर छूना चाहिए. मैं जूते जब उतारता था तो चप्पल जब खोलता था, मैं चप्पल को भी एक बार ऐसा प्रणाम करके फिर आगे बढ़ता था. Okay. क्योंकि उसमें मेरे पैर लगे थे. तो इस तरह का बचपन शुरुआत हुआ. All right. Then gradually got into martial arts. Martial arts में आने से I believe it was needed for a personality like me. नहीं तो मैं बड़ा मीक, डरा हुआ इस तरह का एक इंसान बनता शायद अगर मार्शल आर्ट में नहीं जाता. तो मार्शल आर्ट हैज़ अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ. यू नो, martial art has one big thing that is taught is never to accept defeat. Okay. So I keep on telling that I'll never know that मैं हार गया. You know, मुझे ज़िंदगी में पता नहीं चलेगा कि मैं हार गया क्योंकि मैं लास्ट मोमेंट तक लड़ता रहूँगा, कोशिश करता रहूँगा जीतने की. Till the last moment I'll try to fight back. You know, so my defeat will only be established with my death. All right. So I'll not know that I'm defeated. Only you will know and others will know that okay, this fellow got defeated finally. You know, so this thing has come in from martial arts. Okay. जब ring में उतरते हैं, when you go into your fighting things, then you fight till death. It's like that. You fight it to win it. You don't fight to lose. You don't fight to participate. Correct. तो ये जो एक attitude life में आ गया, तो इससे क्या हो गया, मैं बड़ा
मिशन ओरिएंटेड आदमी हूँ. Alright. यू नो इफ यू गिव मी अ मिशन, जान दे दूंगा लेकिन मिशन कंप्लीट करूंगा. आई विल नॉट, बता ना कि कर नहीं पाया वाली बात नहीं गई, या तो मैं करूंगा या तो मरूंगा. वो बीच वाला नहीं कि आके बोलूंगा सॉरी नहीं हो पाया मुझसे. ये वाला चीज, ये आया मार्शल आर्ट से. अब जस्ट थिंक द चेंज ओवर फ्रॉम अ बॉय हु वाज मीक, शाई, इंट्रोवर्ट टू पर्सन हु हैज डेवलप्ड अ फाइटिंग इंस्टिंक्ट. ये मेरे जेनेटिक्स में आ गया, मतलब डीएनए में एस्टैब्लिश हो गया बिकॉज ऑफ माई मार्शल. मैं बहुत छोटे से मार्शल आर्ट्स में आया, फिर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्शल आर्ट्स में आई गॉट इंट्रोड्यूस टू इट एंड ऑल. तो ये जब बढ़ते गए ना, तो लाइक से आफ्टर 3, 4, 5 एक ऐसा इंस्टिंक्ट मेरे अंदर आया कि विच मेड मी अंडरस्टैंड कि आई एम सुटेबल फॉर व्हाट. यू नो व्हेन पीपल से आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी एन इंजीनियर, वो दे से बिकॉज उन्होंने सुना है हुनी से कि डॉक्टर होले ভাল হবো, इंजीनियर होले ভাল হবো, সকলি হই আছে ময় হোম. But my point was, my way of choosing my career was what I want to do in life. So I'm basically a person who is very protective about whoever is under my charge. Okay. अगर मैं आपका कमांडर हूँ, मैं मरते दम तक आपको बचाऊंगा. यू नो अगर मेरी आपकी जिम्मेदारी मुझे दे दी गई तो मैं मरते दम तक इंश्योर करूंगा कि आपका बाल भी बाका ना हो सके. तो ये सब इंस्टिंक्ट्स जो मेरे बचपन से आ गए ना, देन ग्रेजुअली आई रियलाइज्ड कि यार ये सारा इंस्टिंक्ट इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स ओनली वन प्रोफेशन एंड दैट इज पुलिस. आर्मी वगैरह भी हो सकता था, बट क्योंकि आई डेवलप दिस नैक ऑफ बीइंग क्लोज टू पीपल, यू नो, बिकॉज I believe in first hand experience of human emotions. I believe in first hand human interactions, you know, rather than कि दूर से सोच के कि अच्छा किसी के लिए कर रहे हैं जो मुझे नहीं दिख रहा है, तो वो मुझे किक नहीं मिलता है. हर आदमी का किक होता है ना. तो मुझे किक मिलता है कि अगर मैंने आपके लिए कुछ करा और आपने जो मुस्कुरा दिया ना मेरे ऊपर, बस मैं खुश हूँ, उतने में खुश हूँ मैं. तो ये होता है मेरा किक. That's why I gravitate towards people. That's why you find me getting into people, you know, and doing something which appears as if like many of people think कि मैं popularity के लिए कर रहा हूँ, you know, which वो मैं ही समझता हूँ या जो मेरे बहुत करीब है वो समझता है कि सब इंसान का किक होता है जिंदगी में, है ना. कुछ आप करते हैं तो कोई चीज़ होना चाहिए लाइफ में ना कि आपको कि पुश मिल रहा है, किक मिले, मोटिवेशन मिले, मोरल. मेरा किक है वो ह्यूमन इंटरेक्शन. वो जब मिस हो जाता है तो फिर मैं डाउन हो जाऊंगा. That's why you are accessible. Yeah, I am accessible and I believe it is more for myself. I am being honest in telling that कि शायद मैं इसमें सेल्फ इंटरेस्ट है मेरा कि मुझे मज़ा आता है, अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं. आपको अच्छा लगता है, पब्लिक का भला हो रहा है, ये अच्छी बात है, बट इसमें मुझे भी अच्छा लग रहा है. इट्स नॉट दैट मैं कोई भगवान हूँ बहुत बड़ा ये. तो इसीलिए पुलिसिंग केम अप एज अ नेचुरल चॉइस फॉर मी. और उसी बीच में क्या हुआ कि एक सिपाही थे जिनको मैं देखा स्कूल जाते वक्त, and that one figure of that constable with a mustache standing like this before a vehicle while I was going to school on a small bicycle, that was my, मतलब उसने मुझे बदल दिया यार. उसने मैं सोचा मैं तो यही बनूंगा. मुझे पूछा तो मैं बोला भी स्कूल में वो उनके जैसा ही बनना मुझे. अब वो कांस्टेबल थे क्या थे मुझे नहीं पता, यूनिफॉर्म आपको बहुत. यस, सो दैट वाज माय पॉइंट. और उसके बाद ग्रेजुअली बाय द टाइम आई रीच्ड क्लास 8, देन विद फ्रेंड्स एंड डिस्कशंस मुझे पता चला कि यूनिफॉर्म में मुझे पूछा क्या बनोगे यूनिफॉर्म में, क्या बनना है पुलिस में. पुलिस बनना है. अरे तो पुलिस में तो बहुत लोग होते हैं, मल्टीपल रैंक्स, एटलीस्ट 4 लेवल्स हैं. अब यू कैन जॉइन एज अ कांस्टेबल, यू कैन जॉइन एज अ सब इंस्पेक्टर, यू कैन जॉइन एज अ डीएसपी और यू कैन जॉइन एज एन आईपीएस. तो किस लेवल पे आओगे. तो मैं पता लगाया कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कहाँ होगा, सबसे ज़्यादा मैं लोगों का मैक्सिमम मदद कहाँ कर पाऊंगा. तब बिलीव मी, तब भी एज अ किड ना दिस पावर पोजीशन डिड नॉट अट्रैक्ट मी कि आईपीएस मतलब बड़ा ये गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा लाल बत्ती. दिस वाज नॉट नेवर माय अट्रैक्शन. मेरा क्वेश्चन वाज, इफ यू टॉक टू माय फ्रेंड ही विल टेल यू, मैं पूछा कि भाई मैं सबसे ज्यादा काम कैसे कर सकता हूँ, मैक्सिमम इम्पैक्ट कैसे कर सकता हूँ, मैं मैक्सिमम लाइव्स को टच कैसे कर सकता हूँ. एंड देन आई केम टू अंडरस्टैंड कि आईपीएस इज दैट सर्विस व्हिच विल गिव मी दैट अपॉर्चुनिटी. सो आई जॉइंड दिस सर्विस एंड टुक इट एज गोल इन लाइफ, as in that this is going to be an opportunity for me in life, and it was not an aim और कुछ मुझे ये करना है ऐसा. That's how I finally came to the point of choosing IPS. और उसके बाद once decided कि IPS बनना है तो फिर the whole mind gets oriented. फिर आपका चाल ढाल, कपड़ा, हेयर स्टाइल सब कुछ
लाइफस्टाइल चेंज बस वो आईपीएस तो बाद में बना, हाँ, वो क्लास 8-9 से ही उस रूप में आ गया, Okay. यू नो कि अभी वो चीज़ होगा, तो यू आर कंसिडरिंग योरसेल्फ अ पुलिस you're ऑफिसर, molding into that दैट्स form. व्हाट. सो वो जो आप वो जॉब के जो कैरेक्टर्स एंड ऑल ग्रेजुअली स्टार्टेड गेटिंग इनटू मी, एंड देन आई हैड नो अदर चॉइस, मैं कुछ और बन भी नहीं सकता था. Right, sir. Perhaps I had become misfit for any other service in this world except maybe police. And God was great. Yes, sir. You know, the blessings of all the parents, guardians, teachers was really good. And finally, I could land up in this great service that gives so much huge opportunity. That's so तो ये wonderful. रहा sir. मेरा journey. That's so wonderful, sir. এতিয়া কথা এটা সুধো আপোনাক, UPSC এক্সামটো দ্যাটছ নট আ ইজি এক্সাম নহয়, উই নো, আমি জানো যে এইটো ওৱান অফ দ্য টাফেষ্ট এক্সাম বুলি কয় ইণ্ডিয়াত, লেক্স অফ ষ্টুডেণ্টছে এপিয়াৰ কৰে, কিন্তু সেইটো কোনটো এলগৰিথিম থাকে যোনটো কাৰণে অনলি আ ফিউ পিপল লাইক 200-300 মানুহে IPS IAS হ'ব পাৰে, Right. এণ্ড আপোনাৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো কেনেকুৱা আছিল ডিউৰিং ইয়ৰ প্ৰিপাৰেশ্যন টাইম? Very good question, brother. In fact, প্রথম কথা easy and tough. এই যে কথাটো হয়, it depends upon your preparation. Okay. Okay. So if you are well prepared, it's easy. If you are not prepared, it's tough. Alright. And it can be any exam, not UPSC. It can be even class 10 board exams. Correct. Okay. So I believe this exam is as easy as your preparation. হয় ছাৰ. Okay. Now আপুনি preparation to কেনেকুৱা ল'ব সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব কি আপোনাৰ ছাকচেছ হ'ব বা নহ'ব. হয়. ইয়াত 2-3টা বস্তু আছে যিটো আই বিলিভ মোটা মই আপোনাক যদি কওঁ, মোৰ নিজৰ এক্সাম্পল বা এক্সপিৰিয়েঞ্চ লৈ কওঁ, আৰু যিমান মোৰ বন্ধুজনে অলৰেডি ক্লিয়াৰ কৰিছে তাৰ লগত কথা পাতি লৈ যিমান বুজিছোঁ, হয়. তো প্ৰথম বস্তু হয় ইউ হেভ টু বি ক্লিয়াৰ হেডেড, ডিচাইডেড. ইট কেনট বি আ চান্স লৈ আছোঁ বা দি চাওঁ নেকি, চাই লওঁ এবাৰ. নহ'ব, অ'কে. নহ'ব, কেতিয়াও নহ'ব. যেতিয়া আপুনি চাই লওঁ নেকি একবাৰ হ'ব নে নহয়, হা. নহ'ব. অ'কে. Okay, this is nothing, this is not an exam जो क्योंकि तात personality test है. ৰাইট. Okay, personality test तो क्या है कि whether you are fit for public service or not, आप में वो जुनून है कि नहीं, অ'কে. है ना. वो जुनून देखो, कुछ मेरे जैसे होंगे जो ऐसे बातों में जुनून दिख जाता है, कुछ हो जो चुप रहते हैं, সহি. बट वो जुनून ही कम नहीं है. নো আপুনি বহুত মান অফিচাৰ পাব, হয়তো মই বেছি হয়তো ভিজিবল হৈ গৈছোঁ বা আপুনি মোক জানে সেইকাৰণে মোক মাথাত উঠাই ৰাখিছে, বাট আই হেভ ন' স্পেচিয়েল কোৱালিটি. বুজিছোঁ. মোৰলৈ ভাল অফিচাৰ ইয়াতেই আছে, মোৰ লগত মোৰ বেটচমেটছ আছে, ইয়াত মোৰ জুনিয়ৰ্ছ আছে, চিনিয়ৰ্ছ আছে, দে আৰ মোৰ জুনুনি মে বি দেন মে, বাট দে আৰ সাইলেন্ট গাইজ, চুপ থাকে. ओके, सो एक्सटर्नल क्वालिटीज में भी डिफरेंट अपियर डिफरेंट, बट भीतर में जो एक थ्रेड है ना, যিটো থ্ৰেডৰ ওপৰত মতিটো বেলেগ দেখাব পাৰি, কিন্তু যে থ্ৰেড আছে, UPSCৰ থ্ৰেড আছে, যিটো প্ৰিপাৰেশ্যনৰ থ্ৰেড আছে, সিলেকশ্যনৰ থ্ৰেড আছে, সেইটো একেই হয়. হয়. কি হয় সেইটো? নম্বৰ 1, ইউ হেভ টু বি ফ'কাছড, ভেৰি ফ'কাছড. নম্বৰ 2, ইউ হেভ টু বি কনচিষ্টেণ্ট. কিন্তু কৰিম, গৈ আছোঁ, অলপ গ'লোঁ, আকৌ ৰখি গ'লোঁ, আকৌ লেফ্ট গ'লোঁ, আকৌ ৰাইট গ'লোঁ, আকৌ আহিলোঁ, আকৌ গ'লোঁ, কেতিয়া নাপাব তাত, হয় না. দেন ইউৰ টাৰ্গেট গেট শিফটিং বেক, সেইটো নহ'ব. ইউ হেভ টু বি কনচিষ্টেণ্ট. থাৰ্ড, ইউ হেভ টু বি ৰেডি টু ডু হাৰ্ড ৱৰ্ক. যিমান কাম আছে, আমি যদি ভাবিছোঁ মাউণ্ট এভাৰেষ্ট যাম, তেতিয়া মাউণ্ট এভাৰেষ্টটো মাথাত ৰাখি লৈ যাব লাগে. মাউণ্ট এভাৰেষ্টত যাম সেইটো ভাবি লৈ মই ইয়াত নাকাটিৰ পাহাৰ ভাবি লৈ উঠি আছোঁ, তো নহ'ব. ইফ ইউ হেভ টাৰ্গেটেড মাউণ্ট এভাৰেষ্ট, তো নাকাটিটো এনেকাই হৈ যাব, ৰাইট. তো দ্যাট your aim has to be clear, your readiness to work hard has to be clear. তাৰ পিছত আপোনাৰ যি কণ্টেণ্টটো ভাল কৰি বুজিব লাগে. কেনেকুৱা কণ্টেণ্ট বুজিব? প্ৰথম বস্তু, গো থ্ৰু দ্য সিলেবাস প্ৰপাৰলি. যে আপোনাৰ এক্সামৰ শিডিউল আহে না, নোটিফিকেশ্যন अभी भी आया हुआ है, UPSC अपनी वेबसाइटত পাই যাব. গো দেয়াৰ, আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য শিডিউল অফ এক্সাম, কি এক্সামটো কেনেকুৱা হয়, কিমান চৰণত হয়, কিমান পেপাৰ আছে, সেইটো বস্তু ভালকৈ বুজিব মানে এক্সামৰ ডিমাণ্ডছ. এক্সাক্টলি. নোটিফিকেশ্যন পঢ়িলে মই ক'ম 5 বাৰ নোটিফিকেশ্যন পঢ়িব লাগে विदाउट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. आपने खाली पढ़ो, जस्ट गिव इट रीडिंग, 5 बार में वो समझ में आ जाएगा. ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पढ़ी ले, अरे बाप रे हेटू केने का हो. डोंट स्टॉप योरसेल्फ, पुश, कीप पुशिंग, रीड द নোটিফিকেশ্যন. ম্যাক্সিমাম মানুহ নোটিফিকেশ্যনই নপঢ়ে পুৰা. ওকে, তো আপুনি প্ৰথম এইটো ভালকৈ পঢ়াৰ পিছত আপোনাৰ সিলেবাস যিটো হয় UPSCৰ, ইউ গো থ্ৰু দ্য সিলেবাস প্ৰপাৰলি. ওকে, চ' ওয়ান্স ইউ ফাইণ্ড দ্য সিলেবাস ক্লিয়াৰ, সেইটো হোৱাৰ পিছত দেন ইউ উইল হেভ টু ফাইণ্ড আউট what are the subjects, you know, what are the books related with that syllabus. তো স্ট্যান্ডার্ড বুকস ল'ব লাগে তাৰ কাৰণে, কি স্ট্যান্ডার্ড বুকস লোৱাৰ পিছত দেন বহুত মানুহ হয় যেনে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰাৰ টাইমত কি কৰে, কি দে ষ্টাৰ্ট ষ্টাডিং ফ্ৰম দ্য ৰেফাৰেন্স বুকস, নোটস লৈ ষ্টাৰ্ট কৰে. দ্যাটছ আ ভেৰি বেড ষ্ট্ৰেটেজি. প্ৰথম আপুনি স্ট্যান্ডার্ড বুক পঢ়ক. ওকে, নোটস এণ্ড ৰেফাৰেন্স বুকস ক্যান অনলি বি ফৰ ৰেফাৰেল, এইটো ৰিভিজনৰ টাইমত ইউজ হয়. প্ৰথম স্ট্যান্ডার্ড বুকস ল'ব লাগে. टेक 1 और 2 बुक्स, 1-2 किताब लेके उसको 10 बार 20 बार पढ़िए. 10-20 तो किताब ले लिया इतना, और थोड़ा सबको देखा, तो उसमें काम नहीं होता है.
you know. So I believe if you go through that your complete hitu kora jeti apni book podibo arambo koribo tar loge apna question paper sabo lage, Okay. you know, Previous because, years. yes, because if you don't see the question papers your preparation will go haywire. আপনি রাস্তাটো ভটকনা কা চান্স है. আপনি যদি হিস্ট্রি পড়ি আছে সাপোজ হিস্ট্রি পড়িলে কেনেকুৱা পঢ়িম হিস্ট্রিটো হিস্ট্রিত কি চাব লাগে কি জানিব লাগে how should my approach be towards the subject hetu question paper will give you the guidance. It will be the teacher who will give you focus. তো অলপমান সাবজেক্ট পঢ়াৰ আগত কোৱেশ্চন পেপাৰটো পঢ়ি লওক আকৌ গৈ সাবজেক্ট পঢ়ো you will know exactly কি চাব লাগে কি ওলাব লাগে এই টপিক দিয়া ৰাখি ये जब होने के बाद one should start writing answers. जिमान अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिबो इमान you will have a better ability to express yourself in writing, and the writing should be as succinct, as brief as possible. जिमान brief करिबो पारे अपनी जिमान कमत बेसी कथा लिखिबो पारे इमान भाल. The final point is that you should try to teach to someone. মই যদি হিস্ট্রি পঢ়িছো এটা চ্যাপ্টার I will try to নবনীল লগত ডিসকাস করো বা নবনীল শিখাও নবনীল you know today I read about the Mauryan history. আপনি জানে মৌর্য কেতিয়া স্টার্ট হইছিল কাক ইটু রিপ্লেস করিছিল কোনে আছিল what was the special feature of Maurya, how was it different from the previous government, how was it different from the next government. That gives the revise as well, right? When I teach you that is when actually you will ask me questions then. Right. Then I'll say yes yaar ye point to miss ho gaya tha. Then I'll do a better study. Okay. That's why teacher क्यों बनता है. Okay. टीचर इसीलिए टीचर बनता है क्योंकि उसको पता होता है कि किसी की पूरी जिज्ञासा को शांत करना है. तो आपको यूपीएससी एग्जामिनर की जिज्ञासा को शांत करना है. इसलिए that teaching will finally consolidate your whole preparation. And जब तक एग्जाम नहीं आता keep reading again and again. Last but not the least, the performance in the examination hall. That is very important. आप एग्जाम हॉल में क्या लिखते हैं. Okay, I remember one of my years जब मैंने एग्जाम दिया I wasted my attempt by not sleeping the night before my exam. You know, इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गया था और अलग अलग चीज़ें. ये तैयारी मेरी तैयारी अच्छी थी but because I could not sleep, believe me, I went and slept in the general studies paper. All right. You know, so I completely wasted my attempt just because this foolish one एक दिन की गलती में मैंने साल भर का प्रिपरेशन बर्बाद कर दिया. तो ये गलती नहीं करना है. सफिशिएंट रेस्ट रखो. एक दिन पहले कुछ नहीं करना, पढ़ना ही नहीं है हो सके तो. ओके, बिलीव मी, लास्ट मिनट में पढ़ने से कुछ एक्स्ट्रा नहीं आ जाता है. मैं जब एग्जाम हॉल में आप जाएंगे देखेंगे ना कुछ बच्चों को यार डराते बहुत है बच्चे. वो किताब लेके पढ़े जा रहे, ये पलट रहा वो पलट रहे. मैं बड़ा डरता था यार. स्कूल में भी देखता था कुछ बच्चों को ना दे स्कूलों गोई साबो अपनी कि तो पढ़िया से लड़की लोग ज़्यादा करती है, ये डराती ज़्यादा है. वो गो इमान पढ़िबो अपना मन तो बाप रे इमान पढ़िया से सब चार फाले पढ़िया से मैं पढ़ाई नहीं की बाची को इसे ऐसा क्या बच गया है जो इसे पढ़ा है मैंने नहीं पढ़ा है. तो वो सबसे घबराना नहीं है, कूल रहना, अपनी पढ़ाई पहले ख़त्म कर लेना. ओके, सो आई बिलीव दैट विल हेल्प यू टू फाइनली क्रैक द एग्जाम. और जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो बी रेडी फॉर दैट, राइट. तो दैट्स व्हाट. बोनस पॉइंट फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स देन. यहाँ पे हो जाएगा. कोचिंग का काम तो हमें ही कर रहे हैं यहाँ पे. एक्चुअली और मैं बताऊँ कोचिंग का ना, देखो कोचिंग का लोग पूछेंगे कोचिंग ज़रूरत है क्या. अगर आपको लगता है ज़रूरत है तो ज़रूरत है. अगर आपको लगता है मुझे नहीं लगा कभी ज़रूरत है तो मेरे लिए ज़रूरत नहीं था. अगर मुझे आप कोचिंग करा देते, मैं आप बता रहा हूँ मैं एक बार इंटरव्यू देने गया था. मैं 2 बार इंटरव्यू दिया मैं. तो पहली बार जब इंटरव्यू देने गया ना तो उसके पहले एक मॉक टेस्ट करके गया था. एक बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे मैं गया, मॉक टेस्ट के लिए गया था खाली. आई डिड नॉट टेक एनी कोचिंग, आई विल टेक अ मॉक टेस्ट, थोड़ा देख लेते हैं. मॉक टेस्ट में जब गया तो भाई ने बताया यार ऐसे बैठना है, ऐसे रखना है, इतना इंच सीधा रखना है, आंखें ऐसी रखनी है. अब यार मैं बोला यार मैं तो पूरा मतलब डिफेक्टिव आदमी हूँ, इतना कुछ बता दिया उसने. लगा कि पूरे जीवन ही डिफेक्टिव था यार. आज ही आके मेरे को ठीक किया गया यहाँ पे. और बिलीव मी आई टुक दैट सीरियसली, यू नो. एंड उन्होंने जो बोला गलत नहीं बोला. प्रॉब्लम कहाँ हो गया कि जब मैं इंटरव्यू में गया तो मैं याद करता रहा, सर ने बोला था माथा तेरा लेफ्ट ज़्यादा जाता है, राइट सीधा रखो, आंखें ज़्यादा नीचे जाती है ऊपर रखो, हाँ ये अपना इसको सीधा रखो, राइट लेग ज़्यादा मूव करते हो इसको कम रखो, हाथ इस पे रखो. ये करने के चक्कर में नंबर ही नहीं मिले मुझे. यू नो, यू आर नॉट बीइंग योरसेल्फ, राइट. नॉट बीइंग. दूसरे वाले जब इंटरव्यू में गए, जब सिलेक्शन हुआ, भाई आराम से गया, प्यार से बैठा, मुस्कुराते मुस्कुराते हम जैसे हैं वैसे बात किया आराम से. एंड दे वर स्माइलिंग, आई वाज स्माइलिंग, लाइक इट वाज ऑल स्माइली थिंग एंड इट ऑल हैपेंड वेल एंड आई गॉट गुड मार्क्स एंड गॉट सेलेक्टेड बिकॉज आई वाज माई सेल्फ. तो ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ एग्जाम सबसे ज़रूरत है, क्योंकि इवन जब आप यूपीएससी क्लियर कर लेंगे और जब आप ऑफिसर बन जाएंगे, व्हाट विल बी मोस्ट नीडेड इज जस्ट बी योरसेल्फ. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट. नाइस सर. सर आप तो बिहार से हैं जी. बिहार का एक रिकॉर्ड है टू बी ऑनेस्ट कि सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस वहाँ से निकलते हैं. तो बिहार की छक्के में ऐसा कौन सा आटा पीसता है
कि दूसरे के ही राज्य में ये मिलता नहीं है. What is that? जो बिहार का जो चक्की है एक्चुअली वो बहुत पुराना है. हाँ, वो नालंदा और विक्रमशिला की चक्की है. All right. समझ रहे हैं? तो वहां से वो पढ़ाई का कल्चर शुरू Sir, that's a lovely answer दे रहे हैं. मुझे अभी अच्छे से सुनना है. तो वो चक्की जो था वो नालंदा के टाइम पे लगा था. नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के टाइम में चक्की लगाई गई थी. और जो आटा है जो वहाँ की जो वहाँ पे वो उस खेत का चावल गेहूं है जिसने बहुत सी रक्तपात देखा है, जिसने बहुत ही ब्लड शेड देखा है, वो उस धरती के ये उपज है. जिन्होंने देखा है दमन क्या होता है, किस तरह अथॉरिटी दबाता है नॉर्मल जनता को, किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता है, ये उस धरती ने देखा है. उस धरती ने चंद्रगुप्त मौर्य को भी देखा था, अशोक को भी देखा था, एंड लॉट ऑफ लीडर्स आफ्टर दैट भी देखा. तो ये सब देखने के बाद और जब आज़ादी की लड़ाई के वक्त में जब उन्हें ये समझ में आया कि जब ये ICS का जब एग्ज़ाम शुरू हुआ सिविल सर्विसेज का, तो देखा ये सारे अंग्रेज बाबू आते हैं, ये यार ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं और ये माई बाप बन जाते हैं. तब ये विक्रमशिला का जो और नालंदा की जो चक्की थी उसका स्पीड थोड़ा पकड़ा कि भाई यहाँ तो गुजारा करने के लिए हमें वही बनना पड़ेगा, और नहीं तो हमें जिस तरह से बाकी उसके बाद मिडिएवल एज में जिस तरह से कुचला गया, मारा गया, दबाया गया, और जिस तरह से ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह से हमें सहना पड़ा, तो ये तो हम कभी ये विशेष सर्कल से निकल ही नहीं पाएंगे. तो इससे निकले तो कैसे निकले, तो रास्ता दिखा यूपीएससी देते हैं और हम खुद को उस लेवल पे ले जाते हैं जहां से हम उस क्लास में एंटर हो जाए जो दबाने का काम करती थी. तो एटलीस्ट हम दबाएंगे तो नहीं, हमें पता हुआ दर्द क्या होता है. सो दिस इज हाउ आई बिलीव कि मोस्ट ऑफ द पीपल हैव गॉन फॉर दिस. यूपीएससी के लिए इतना इंटरेस्ट होता है और इतना वो जज्बात जो होता है वो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकली इम्बेडेड है. तो दैट हेल्प्स अ लॉट. और उसके अलावा प्रेजेंट सर्कल में भी देखिए तो जिस समाज में जिसकी इज्जत होगी ब्रदर, वहाँ जाके देखिए तो एक IAS IPS का समाज में आज के दिन में भी अगर वो गांव में जाता, कहीं जाता ना, तो दे नो कि किसको रोल आइडियल बना के बच्चों के सामने पेश करना है. ओके, तो वो उनको पेश किया जाता है एज अ रोल मॉडल. यस, उनको पेश किया जाता है. तो बच्चे भी देखते हैं यार कि इस प्रोफेशन में इतनी इज्जत है. तो जिसको दिखता है कि अगर यार इतनी इज्जत दिखता है तो उसको बाई डिफॉल्ट वो मन जाएगा कि मैं भी वही काम करूं जिससे मेरे घर का, मेरे परिवार का, मेरे पेरेंट्स का, मेरे खुद के मन में इज्जत बढ़े. तो ये अगर मान लीजिए कुछ राज्य हैं, जैसे मान लीजिए गुजरात में इज्जत किसकी है? बिजनेसमैन की. तो हर बच्चा वहाँ बिजनेसमैन बनना चाहेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं जितने पैसे कमाऊंगा, जितना बड़ा बिजनेस करूंगा, उतना मेरी इज्जत होगी और मैं फिर समाज में एक्सेप्टेंस मेरा बढ़ेगा, मैं वही बनूंगा. अनफॉर्चुनेटली नॉर्थ ईस्ट में आप जो आज के बारे में बात नहीं है, और जैसे एक टाइम में ऐसा था कि जो गन टॉटिंग लोग होते थे मिलिटेंसी में, इंसर्जेंसी में, उनकी बड़ी इज्जत थी. समहाउ अनफॉर्चुनेटली ये एक मैसेजिंग चला गया था कि वो हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, वो हमारे सेनानी है, वो हमारे सेना है, वो हमारे लिए सब कुछ अच्छा करते हैं. अनफॉर्चुनेटली वो मैसेजिंग गलत हो गया था यूथ के लिए. फिर बच्चे हमारे समझने लगे थे कि शायद हम बंदूक उठा के जंगल जाने में हमारी इज्जत बढ़ेगी, तो एक गलत रोल मॉडल बच्चों के सामने पेश कर दिया गया था. तो इसके चलते बहुत नॉर्थ ईस्ट का एक बड़ा सा चंक इतिहास का इसके चलते डिस्टर्ब हो गया. रोल मॉडल जो था वो गलत पेश हो गया था. तो यहाँ पे भी अब ग्रेजुअली देखिए दिख रहा है. जब सपोज हम असम में हैं, अब असम के लिए कितने सारे सिविल सर्वेंट्स हैं, बहुत सारे अब आ रहे हैं, है ना. अब वो नए रोल मॉडल बन के निकल रहे हैं. वो समाज में उस जगह को अपना कायम करके दिखा रहे हैं कि देखो असम के बच्चे असम में रह के, असम में पढ़ के, असम से क्वालिफाई करके असम में वापस आके सेवा में आ सकते हैं. अब वो नया से जो ये एक दौर शुरू हुआ है, डॉक्टर्स का, इंजीनियर्स का, एंटरप्रेन्योर्स का, एडवोकेट्स का, हर तरह के लोग. तो ये रोल मॉडल अभी शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है. तो इसीलिए आप देखिए अब असम से भी हर साल देखिएगा आप यहाँ पे सिलेक्शन होता है ना. तो इसीलिए आई बिलीव जो बिहार वाली चैप्टर आपने बताया, बिहार में क्योंकि उसका इतिहास ये कहता है, गुजरात बिकॉज गुजरात का इतिहास कुछ और कहता है, असम या नॉर्थ ईस्ट बिकॉज यहाँ का इतिहास अलग है. तो आई थिंक ओवर टाइम ये जब एक नेशनल, एक सर्वव्यापी एक देश के रूप में जब हमारा इतिहास बन रहा है, जो नेशनल भारत का इतिहास, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये एक ये प्लेन ग्राउंड होगा जहाँ पे कि मोर और लेस हमारे रोल मॉडल्स काफ़ी सिमिलर या शेयर्ड रोल मॉडल्स होंगे. ओके, होपिंग दैट यहाँ भी सब कुछ इस लाइन में आने लगे. करेक्ट सर. वैसा हम वी आल्सो होप सम सच. सर एक ब्यूरोक्रेट का लाइफ ऑफ ब्यूरोक्रेट, वो व्हाट people see on camera or on TV and they don't see what's going behind their life. वो behind में क्या होता है, पीछे का चैप्टर क्या होता है, what's going on. तो
a question on that is that how that life is, and secondly, sir, bureaucracy and politics. How well does they both go hand in hand, sir? वेरी वेल क्वेश्चन, मतलब बहुत अच्छा पूछे आपने, दोनों पॉइंट्स ही बहुत अच्छे हैं एंड जानना चाहिए। Thank you, देखो, sir. नहीं रियली नॉर्मली देखो ब्यूरोक्रेसी का पीछे क्या चलता है, पीछे वही चलता है जो आप बाहर देखते हैं। Okay. बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। ओके, तो ब्यूरोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी काफ़ी है। सुनो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कोई लोग कहते हैं कि नहीं ये तो सिर्फ दिखावे के नहीं, लिए, नहीं, पीछे ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। दैट पॉइंट सर। नहीं, ये कुछ लोग करते होंगे, कुछ पर्टिकुलर लोग हैं, अभी भी हर जगह होते हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, जो कि ब्लैक शिप्स होते हैं ब्यूरोक्रेसी के भी। तो उनके लिए अगर आप देखेंगे तो दे विल बी द पीपल हु विल क्रिएट अ नोशन एज इफ कि बोला कुछ जा रहा है, हो कुछ रहा है। लेकिन इन जनरल ब्यूरोक्रेसी क्या है, रूल्स पे चलता है ना, कानून पे चलता है। तो जो कानून आपको दिखता है ग्राउंड पे, उसी कानून का पालन करते हैं विद सम एबरेशंस हियर एंड देयर। जो हमें दिखता है एबरेशंस जो होते हैं वो एक्सेप्शंस होते हैं। लेट अस नॉट काउंट इट एज द जनरल प्रैक्टिस। आपको अगर 2 खबर गड़बड़ का मिलता है तो 200 खबर सही भी तो है, जो कि एक्चुअली कानून के तहत चल रहा है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि वो जो कानून के तहत चलने वाला ब्यूरोक्रेसी ही सही चेहरा है ब्यूरोक्रेसी का, और जो आपको दिखता है कि कानून के तहत नहीं या कुछ अलग चल रहा है, वो एबरेशन है, वो एक्सेप्शन है। दैट इज नॉट द रूल। सो एनीबडी हु इज ट्राइंग टू जॉइन द ब्यूरोक्रेसी शुड हैव इट इन माइंड कि ब्यूरोक्रेसी विल गिव यू अ प्लेटफॉर्म जो कि अनबायस्ड है, जो कि रूल बाउंड है, एंड जो कि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है सिनेरियो का, और आपको पब्लिक रिसोर्सेज विथ अकाउंटेबिलिटी आपके हाथ में पहुंचाता है कि आप उसको यूज़ कर सकें पब्लिक इंटरेस्ट में। सो दैट इज़ फॉर ब्यूरोक्रेसी। पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी का कहा जाए तो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है बेसिकली। यहाँ पे क्या है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स हैव टू वर्क ऑन द सेम फील्ड, रोल अलग अलग है। अब एक सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूँ सर्विस समझने में। हाँ, मान लीजिए कि कहीं पे एक लंगर चल रहा है जहाँ पब्लिक को खिचड़ी खिलाई जा रही है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, है ना, ओके, टू अंडरस्टैंड कि अलग अलग रोल हैं, बट ये इन टुगेदर ये चीज़ नहीं होगा, इसमें से एक भी मिसिंग हो जाएगा तो काम नहीं चलेगा। समाज है मान लीजिए जहाँ पे लंगर चल रहा है, खिचड़ी खिलाई जा रही है, पब्लिक ने लाइन लगाया हुआ है, एक भाई साहब काउंटर पे बैठ के खिचड़ी दे रहे हैं, राइट, एंड समबडी जो पीछे खिचड़ी पूरा बना रहा है, खिचड़ी को रेडी कर रहा है और तैयार करके काउंटर पे पहुंचा रहा है, और काउंटर वाला उसको दे रहा है पब्लिक में। तो अब ये कौन है? अभी जो लाइन को ठीक करा रहा है, लड़ाई ना लग जाए, सिविल वॉर ना हो जाए, कोई मारपीट ना लग जाए, वो काम पुलिस वाले कर रहे हैं। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर, मजिस्ट्रेट्स, ये सब लाइन को ठीक मेंटेन कर रहे हैं, राइट। जो भाई काउंटर पे बैठ के सामान बेच रहा है या दे रहा है, बेच नहीं रहा है, दे रहा है, वो है मान लीजिए जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, IAS है, अंडर द ब्यूरोक्रेसी है, दे आर डूइंग दैट थिंग, यू नो, टू हेल्पिंग देम विथ द गिविंग अवे द थिंग्स। और जो पीछे में सामान बना के रख रहा है, जो अरेंज कर रहा है, रिसोर्सेस ला रहा है, वो सोसाइटी है, समाज है, वो पॉलिटिशियंस है, okay, who are gathering the things for the people to be distributed through the bureaucracy and ensure that everything is ensured through the law and order and administration. So this is how all three work together for the same cause with different roles. अब इसमें अगर जो पॉलिटिशियंस जो खाना बना के दे रहे हैं वो बोले हम तो नहीं देंगे, तो भाई जो बैठा हुआ एडमिनिस्ट्रेशन में डेवलपमेंट के लिए वो क्या बांटेगा? उसके सामान ही नहीं है बांटने के लिए। और अगर वो सामान भी बांट रही हो और वहाँ पे लाइन ठीक से नहीं लग रहा है तो लूटपाट मच जाएगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, करेक्ट सर, करेक्ट, वो पूरी के पूरा रिसोर्सेस बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए इन तीनों विंग्स को, या जितने भी विंग्स हैं हमारे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, मिलके एक साथ काम करेंगे तभी ये समाज का खिचड़ी सही से बटेगा। करेक्ट सर। सर এটা কথা সুধো আপোনাক, আমাৰ যোনটো শিক্ষা ব্যৱস্থা, এডুকেশ্যন ছিষ্টেম, তাৰে এনেকুৱা কোনটো ফ্ল হয় যোনটো কাৰণে আজি এজন ষ্টুডেণ্টে বহুত কষ্ট কৰি IIT-ত সোমায়, IIM-ত যায়, এখন মেডিকেল কলেজত যায়, কিন্তু আফটাৰ কমপ্লিটিং দেয়াৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন পিছত ভাবে নাই মই এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত যাব লাগে এণ্ড UPSC-ত সোমাই যায়। চ' এই ভুলটো ক'ত আছে ছাৰ, যে ষ্টুডেণ্টে আগতে বুজি নাপায় নে পিছত সেইটো বস্তু এট্ৰেক্ট কৰে সিহঁতক, আৰু এডুকেশ্যন ছিষ্টেমত সেইটো? नहीं, देखो मैं बताऊँ, देखो एडमिनिस्ट्रेशन में भी आगे आने के लिए पढ़ना पड़ता है ना, तब तो पढ़ी আহিব লাগে, কিছু তো পঢ়ি আহিব লাগে, তো কোনো তো এডুকেশ্যন ছিষ্টেমত হৈ আহিব লাগে। তো কি হয় কি, লুক, নো এডুকেশ্যন গোজ ইন ৱেষ্ট। আপুনি যদি ডক্টৰ হৈ আহিছে, ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিছে, MBA কৰিছে, আৰু তাৰ পিছত যদি ছাপ'জ ইউ হেভ জইন্ড এজ এন IAS, IPS অৰ আদাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ, কেতিয়াও এই কামটো আপোনাৰ গলত নাযাব। ছাপ'জ ইউ আৰ এ ডক্টৰ, উই হেভ ইন IPS উই হেভ ডক্টৰ্ছ, ইন IAS উই হেভ ডক্টৰ্ছ, ইউ নো, when they come and join the whole of health administration, okay, you know, they are a resource in the hand of the government. Jodi government use koribo pare tak bhalke, definitely they will be helpful. They understand medical science, they understand interventions which should be on part of the administration and doctors for good health of the community.
তার এক্সপার্টাইজটো নাও হি ইজ এন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অ্যাজ ওয়েল এজ এ ডক্টর, জাস্ট থিঙ্ক অর সাপোজ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাম ডেভেলপমেণ্টৰ কাম হৈ আছে, ইঞ্জিনিয়াৰ আছে, তো he directly technical বস্তুটো বুঝি পাবো at the same time as an administrator, definitely the quality of administration will become better, number one. Second, people who have done professional degrees, that definitely we understand ki clarity to aru bhalke hoy, tar maturity to bhalke hoy, tar approach is more sharp. তো এনেকুৱা মানুহ যেতিয়া এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আহিব ডেফিনেটলি তো পাব্লিকৰ কাৰণে কাম কৰিব, সেইটো তো আৰু ভাল ডক্টৰ হ'লে নিজৰ চেম্বাৰ খুলি লৈ পইচা কমাব, ইয়াত আহি লৈ যদি আহিছে নিজৰ এক্সপাৰ্টাইজ নিজৰ যে কি ক'ব আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ দ্য হোল ছাবজেক্ট, তো সেইটো লৈ যেতিয়া এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত আহিব তো একটা তাৰ ক্লাইণ্টেল এজ এ ডক্টৰ ইউ কেন টাচ 1000 lives, as a doctor administrator you can touch 100 crores lives, তো আপনি কিমান লাইফ টাচ কৰিব পাৰে, সেই কাৰণে যোনে মানুহ বুজি পায় আৰু সেই বুঝাটো জৰুৰী নেকি সবকো ক্লাছ 8 में आ जाता है, সেইটো হয়তো মেডিকেল সায়েন্স কমপ্লিট কৰাৰ পৰে হ'ব পাৰে, কলেজ বা ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ বা MBA কলেজত হ'ব পাৰে, when you suddenly realize কি নাও যদি মই নিজৰ ষ্টাৰ্টআপছ কৰোঁ বা কোন জায়গাত কাম কৰিব যাওঁ তো will I be happy, will I be satisfied, क्योंकि अल्टीमेटली आदमी सेल्फ सेटिस्फैक्शन खोजता है। तो जेतिया हे मानो बुझी पाए नो परहैप्स द सर्विस ऑफ एन IAS ऑफिसर और एन IPS ऑफिसर और फॉरेन सर्विस ऑफिसर और ए रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर मोक हिट माने मोक सेटिस्फैक्शन टू भाल के दीबो पारे, सो द पर्सन शुड बी अलाउड टू फॉलो द पैशन फॉलो, क्योंकि देखो अगर 100 आदमी डॉक्टर हो 100 जन तो IAS IPS ना जाए, 2-3 तो गई आसे जाबो दियक बाबा ता तो लागे मानु लागे ভাল मानु ता तो लागे है। কিন্তু স্যার এটা কোয়েশ্চন এটা আহি যায় ন যে এজন ডক্টৰ ডিগ্ৰী লোৱাৰ কাৰণে এটা সিট আপোনাৰ ভেকেন্সি এটা গুচি যায়, नहीं यार देखो IIT হয় नहीं এইটো কি হয় মই ভাবো কি সেই ল'ৰাটো জনে আছে বা ছোৱালীটো আছে দে আর রিয়েলি ট্যালেন্টেড পিপল, হি অর শি ইজ আ বর্ন উইনার, মানে বর্ন উইনার কোৱাটো বেয়া হ'ব, এই ৰেগুলাৰলি বচপন দিয়া ইমান ভালকে বাৰ বাৰ নিজক প্ৰুভ কৰিব পাৰিছে কি তাৰ কোৱালিটি কিমান আছে, যেতিয়া মেডিকেলৰ এক্সাম দিলে মেডিকেল কোৱালিফাই কৰিলে, UPSC দিলে UPSC কোৱালিফাই কৰিলে, তো তাৰ ট্যালেন্টটো আপুনি দবাব নোৱাৰে না रे भाई, যেটা প্রফেসর হ'ব লাগে সেইটো বস্তু प्रोफेसर हो लगे क्या मतलब उसका अपना भी तो जिंदगी है ना, क्योंकि हे मानु टू मैं कि कलो कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर लाइफ व्हेन यू थिंक कि करिब लगे तेतिया यू हैव टू थिंक इंटरनली नॉट एक्सटर्नली कि মোক कोने कि কৈছে कि मैं इतना PhD কৰিছো तो मैं प्रोफेसर ही হ'ব লাগে নাই, यू कैन बी अ ब्यूरोक्रेट या यू कैन बी अ DM और SP ऑल्सो, क्योंकि हे जे अपनी भाविसे कि আপনার লগৰ যে নলেজ বেস আছে আপনি কথাটো বুঝাব পারে, আপনি কমিউনিকেট কৰিব পারে এজ আ সাপোজ প্রফেসর, যদি আপনি একটা ক্লাসরুমত আপনি 30 জন 60 জনক কৰিব হয়তো 30 লাখ মানুহ কৰিব লাগে, সেই কামটো কৰিব লাগে, বাট ফ্রম আ পজিশন অফ ডিফারেন্ট অথরিটি, যেহেতু আপনি প্রফেসর হৈ কৰিব তাতে আমি DM হৈ কৰিব বা DC হৈ কৰিব বা জাজ হৈ কৰিব বা এজ আ কমিশনার হৈ কৰিব বা SP হৈ কৰিব, তো দ্য পইণ্ট ইজ দ্য ফাইনেলি দ্য এই মানুহৰ যি কোৱালিটিটো আছে সেইটো আপুনি চাব সেইটো পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টতে গৈ আছে, সেই পাৰ্চনেল কোনো কাম কৰি লোৱা নাই কি আচ্ছা আমি ডক্টৰী কৰিছোঁ তো মেডিকেল নকৰি মই উৰিব আৰম্ভ কৰিছোঁ, তো দে হ্যাভ নট আ পাৰ্চনেল মজা লোৱা নাই, এই পাব্লিক সাৰ্ভিসত আছে, তো সেইকাৰণে আই থিংক উই শুড ষ্টপ বিলিটলিং দোজ অফিচাৰ্ছ বিকজ দে আৰ ৰিয়েল টেলেণ্টছ, লেটছ ৰেছপেক্ট দেম, কি সেই মানুহটো নিজক বাৰ বাৰ প্ৰুভ কৰিছে है ना, एंड जोने मानु निजक बार बार प्रूफ करिब पारे हे मानुर लगत এই फैसिलिटी থাকিব पारे प्रिविलेज থাকিব দিব লাগে कि हे चूज करिब निजक कि करिब लागे लाइफत, वी कैनॉट चूज फॉर द पर्सन बिकॉज ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ strong and eligible and maybe better than many of us, again and again, so let us leave them to decide what they want to do with their lives, and ultimately you see brother the point is कि they have decided to work for a greater cause, হে নিজে কোৱা নাই না কি মই ডক্টৰী কৰিছোঁ এতিয়া নিজৰ ষ্টাৰ্টআপ কৰিম, দেখো ষ্টাৰ্টআপ কৰাটো বেয়া কাম নাই, हाँ নিজৰ ডক্টৰী কৰা বেয়া, এইটো ইটস গুড বিকজ आपका मन कहता है कि মই নিজৰ নাৰ্ছিং হোম খুলিম সেইটো লৈ মই মানুহক সেৱা কৰিম, আপনার যি ধারণাতে যি লেভেলত আছে বা যি লাইনত আছে পারফেক্ট আছে, আপনি হি কাম কৰি আছে লাভলি গ্রেট জব, ইউ উইল বি হেল্পিং সো মেনি লাইভস, বাট একটা বেলেগ ডক্টৰ আছে যে ভাবিছে কি ইয়াৰ মই একটা নাৰ্ছিং হোম খুলি তো মই কি কৰিম, কিমান মানুহক মই টাচ কৰিম, ইয়াৰ মানুহ ইমান মানুহ মৰি আছে, ইমান প্ৰব্লেম অফ হেল্থ হাইজিন লাইফ ইস্যুজ আছে আমাৰ কাণ্ট্ৰিত, why cannot I become a policy maker, why cannot I influence the policy of the country, why I cannot directly go and interact with the people and try to find out কি তাৰ কি প্ৰব্লেম আছে, মই ডাইৰেক্টলি নিজৰ হাতত তাক মদত দিব কিয় নোৱাৰো, তো সেই মানুহটো এটা বেলেগ প্ৰিন্সিপালছ লৈ চলি আছে লাইফত, সেইকাৰণে নিজৰ ৰাস্তাটো বেলেগ ডিসাইড কৰিছে, that does not make him wrong, his person is not wrong, we should rather say কি জনে নার্সিং হোম খুলিব হেও একটা মানসিকতা লৈ গৈ আছে, এণ্ড এ গুড মানসিকতা, তাৰ ইণ্টাৰেষ্টটো পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট আছে,
সেই মানুহটো ভাবিছে মই পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টত কাম কৰি অলপমান বেলেগ ফালে কৰিম but এই ডক্টৰী চিটটো বেয়া নহ'ব বিকজ দ্য পাৰ্চন উইল অলৱেজ কাম আপ উইথ লট অফ এক্সপাৰ্টাইজ এণ্ড গুড এডভাইচ টু গভৰ্ণমেণ্ট তো যি কামটো হ'ব গভৰ্ণমেণ্টৰ কামত ৰাইট ফালে যাব ৰাইট ডাইৰেকশ্যন যাব চ' আই বিলিভ দ্যাটছ এ ভেৰি গুড ডিচিজন যোনে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত আহি আছে Fair enough. Sir, a question now, sir. That's going on a trend as a booster. UPSC toppers are now celebrated like or recognized as celebrities. Toppers, sir. They are role models, they are icons. But, sir, we recently saw a case in Uttar Pradesh where an IS officer, he was suspended from his duty, following which suspended from his duty as he was absent from his service period for more than 80 days to make a web series, sir. A web series shooting a goal. And also that same person election commissioner para notice paisile as he was showing off the facilities he received during as he was serving the elections in a particular state. So as these are age into trends only, the UPSC toppers are now becoming more social media influencers, or UPSC or bureaucrats particularly are becoming social media influencers rather than focusing on the services. So what's your point of view to that, sir? This is exactly what you have already answered it, in fact, without focusing on their main core. Till the time a person is able to focus on their main work, till the time a person has not compromised his or her work, till the time a person's duty and position is not getting compromised by his personal life, we should not have, we should let the person live a personal life, and let us not comment on somebody's personal life. So yes, if your personal life is affecting your professional life, for which you have committed to give a certain amount of effort, and which you are not giving, and you are taking away that part and using it for personal, then I believe that is high time that the person should quit from public life and should rather be wherever the person's mind. मेरा मानना है इंसान का दिल जहाँ जाए वहीं जाना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, दो नाव में पैर रख के नहीं जाने की बात होना चाहिए. बट एट द सेम टाइम अ पर्सन हु इज़ इनटू प्रोफेशनल लाइफ, अगर उसकी देखो अगर एक कलाकार है उसके अंदर, है ना, तो उस कलाकार है यानी वो आदमी सेंसिटिव है. अगर वो सेंसिटिव है तो वो सेंसिटिविटी अपनी पब्लिक लाइफ में भी दिखाएगा. इफ़ यू वांट टू किल द पर्सन सेंसिटिविटी, बिलीव मी, ही विल टर्न इनटू अ मशीन running over the people. Okay, so we should not curb the creative abilities of anyone, let it be officers or ministers or doctors, engineers. हर आदमी का we should promote as a country जितना कि उसका मल्टीपल जो एंगल से वो अपने आप को बढ़ा सके, उसका जो चतुर्मुखी उसका ग्रोथ होना चाहिए. वी शुड नॉट कि भाई तुम डॉक्टर हो तो डॉक्टरी करो, भाई तुम क्या ये पेंटिंग क्यों करते हो, तुम्हारा माथा खराब है, वहाँ पे सर्जरी करना, तुम यहाँ पेंटिंग की बात करते हो, गाना गाते हो यार, मजाक करते हो तुम क्या. हाँ भैया उसको गाना गाता है, उसका मूड ठीक रहता है, टेंशन रहता है, गाना गाते गाते ऑपरेशन करता है ऐसे लोग. तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, जब तक वो ऑपरेशन ख़राब नहीं कर देता है, जब तक उसने अपना चिमटा पेट में बांध नहीं दिया, तब तक तुम्हें नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए ना भाई उससे. तो हमें क्या होता है भाई, ने देखो बहुत लोगों को चूल होता है अपने भी होने का, यार हम तो कर नहीं सकते, ये कैसे कर रहा है. तो ये जो चूल होता है ना, ये ज़्यादातर प्रॉब्लम करता है ये सब डिस्कशंस और डिबेट्स में. हाँ, अगर प्रॉब्लम है बंदे या बंदी जो भी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ब्यूरोक्रेट है, जो भी है, अगर उसका पर्सनल लाइफ इज़ हैम्परिंग द पब्लिक लाइफ, तब सीधा सीधा बोलो भाई यू चूज़ वन. उसको सीधा सीधा आप अल्टीमेटम दे दीजिए कि आप बिकॉज आप पर्सनल लाइफ में करें इसलिए आप पब्लिक लाइफ में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, या जैसे आपने बोला कि भाई आपको यहाँ ड्यूटी करना था, आप छोड़ के अपना कुछ कर रहे हैं, तो फिर आपको ड्यूटी, उसको आप अल्टीमेटम देके उसको भाई वहाँ से उसको आप निकाल दीजिए कि आप अपनी लाइफ, आपको जो अच्छा लग रहा है आप उसमें करिए, अननेसेसरी माहौल ख़राब मत करिए. लेकिन अगर बंदा या बंदी दोनों बैलेंस कर पाता है, क्रिएटिव भी है, एट द सेम टाइम कंस्ट्रक्टिव भी अपने काम में, तो क्या प्रॉब्लम होना चाहिए यार उससे, है ना. तो ये बैलेंस तो देना चाहिए, उसको भी तो जीने का अधिकार है. इंसान पैदा हुआ था, वो नौकरी करने के लिए थोड़ी पैदा हुआ था कि पैदा होगा नौकरी करेगा, है ना, जी सर, जी सर, यस सर, यस सर, यस मैडम करके मर जाएगा. ये नहीं होना चाहिए. आप अगर उसको, उसकी सेंसिटिविटी को मार देंगे, उसकी क्रिएटिविटी को मार देंगे, आप एक्चुअली उसके पोटेंशियल, उसके टैलेंट, उसके काम करने की क्षमता को भी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं. तो ये नहीं करना चाहिए, व्हाट आई बिलीव. और
सबको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए कि आपके अपने पैशंस होने चाहिए, हॉबीज़ होने। हाँ, ये जो है ना दिखावे का थोड़ा सा ये कम होना चाहिए। आई बिलीव कि पब्लिक सर्विस थोड़ा सा अब जैसे देखिए कुछ लोग होते हैं ना कि यार आज मैंने इसको पकड़ लिया, आज मैंने यहाँ पे पेड़ लगा दिया, आज मैंने यहाँ पे तंबू गाड़ दिया, ये नहीं करना है यार, है ना। अब ठीक है, मैं भी हूँ, मैं गिटार बजा लेता हूँ, मैं सोशल काम करता हूँ। आई विल नेवर पोस्ट एनीथिंग कि मैंने कहाँ तंबू गाड़ दिया, किसको पकड़ लिया, तो ये सब चीज़ नहीं। सोशल चीज़ें सोशल रहने दीजिए, प्रोफेशनल चीज़ें प्रोफेशनल रहने दीजिए, वो मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं ओवरलैपिंग होता है क्योंकि हम वर्दीधारी हैं यार, कि कभी कभी ये थोड़ा ओवरलैपिंग हो जाता है। बट द मोमेंट इट इज़ कि योर पर्सनल लाइफ इज डिस्टर्बिंग योर प्रोफेशनल लाइफ, वन शुड बी फेयर इनफ टू वन सेल्फ टू चूज़ कि भाई मुझे किधर जाना है ना। लेकिन ये फैसला खुद लेना है, ये दूसरे के हाथ में नहीं देना है कि आप हमको डिसाइड करके देंगे कि मुझे क्या करना है। ये भी गलत हो जाएगा और आपको भी नहीं करना चाहिए। आपको भी अपनी मैच्योरिटी मेंटेन रखनी चाहिए। आप अपनी लाइफ के डिसीजन लें, मेरी लाइफ की डिसीजन आप नहीं लीजिए। ऐसे जिस ऑफिसर की आप बात कर रहे हैं यार, हो सकता है उसके अपने क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स हैं, कुछ क्रिएटिव टैलेंट्स हैं, उसको भी चाहिए कि अपनी एक डिसीजन लेना चाहिए, और बाकियों को भी चाहिए कि मे भी एक। अब देखिए हमारे टीम में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं ना, प्लेयर्स होते हैं जो कि हम सरकारी नौकरी देते हैं, तो उनको खेलने से रोक देते हैं आप तो बोलते हैं खेलो यार, तुम्हारे में वो टैलेंट है तो खेलो। तो अगर आपका एक ऑफिसर है या कोई भी है जिसमें पर्टिकुलर टैलेंट है, तो ये आप एज अ मे बी सीनियर एज या उसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी, आपकी टैलेंट है कि आप उसके उस टैलेंट को पब्लिक सर्विस में कैसे यूज़ कर पाते हैं। ये भी तो आपका गुण होता ना। अगर आप उसके ही टैलेंट को अपने हिसाब से यूज़ नहीं कर पाए तो ये तो आपके लिए भी कमी की बात है यार। सपोज अब वो जो बंदे की बात आप कर रहे हैं, वो अगर पब्लिक से कनेक्ट हो पा रहा है, उसके वेब सीरीज़ आ रहे हैं, उसके ये आ रहे हैं, तो आप उसको पब्लिक सर्विस के भी तो हमारे प्रेजेंटेशंस होते होंगे, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते होंगे कुछ, जिसके बारे में पब्लिक को बात करनी। अगर पब्लिक उससे कनेक्ट होती है तो उसी से बुलवाइए ना फिर। तो आपका जो प्लान है, जो गवर्नमेंट का एजेंडा, वो भी तो बेहतर आपकी बात को पेश कर पाएगा ना। तो जस्ट मुझे प्रॉब्लम है कि अच्छा उसको बुलवाएंगे तो पॉपुलर हो जाएगा। अरे भाई वो पॉपुलर ऐसे ही हो जाएगा, वो आपके इससे नहीं। अभी आप देखिए कि उसकी चीज़ को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ अ सेंसिबल थिंग टू डू, रादर देन कि आप उससे अपने ही उससे लड़ना शुरू कर दीजिए। यार मेरा चाकू तो ज़्यादा तेज़ है, या इसका तेज़ क्यों है, इसको काटो इसको। अबे यार तेज़ है तो उसको अच्छे से काटने में यूज़ करो ना, उसको चाकू को ब्लंट करने पे क्यों लगे हुए हैं आप, यू नो। सो दिस इज़ आई बिलीव कि थोड़ी मैच्योरिटी आने की ज़रूरत है। एंड आई बिलीव कि मी ऑल्सो एज अ पर्सन शुड, जिसको भी ऐसे क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स हैं, है ना, एंड ऐसा ज़्यादा होता है, तो वन शुड बी रेडी टू क्विट वन ऑफ इट। या तो मैं ये छोड़ दूँ या तो मैं वो छोड़ दूँ। तो ये भी अपने अंदर वो आदमी को लेके तभी ये सब चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन मी एज अ पर्सन, आपने जैसा बोला देखिए आज के दिन में दुनिया में ना सब रोल मॉडल खोज रहे हैं। ओके एवरीबडी, तो बेहतर है ना ब्रदर, मैं बताऊं कि ब्यूरोक्रेट्स को, अच्छे मंत्रियों को, है ना, स्पोर्ट्समैन को रोल मॉडल बनने दीजिए। उसको मत गिराइए, उसको रोल मॉडल बनने दीजिए। उसको देख के दो बच्चा ना अच्छा ही बनेगा लाइफ में। आप उसको गिरा देंगे ना तो उसका रोल मॉडल कौन बनेगा आपको भी पता है, और फिर क्या करेगा वो आपको भी पता है। एक पूरा का पूरा जनरेशन खराब हो गया गलत रोल मॉडल्स के चलते। तो लेट अस नॉट डिस्टर्ब द रोल मॉडल्स एंड आइकन्स, बट येस ये मैच्योरिटी कहीं ना कहीं आनी चाहिए, कहीं बैलेंस होना चाहिए कि आपका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्लैश नहीं होना चाहिए। आपका ओरिएंटेशन टुवर्ड्स पब्लिक होना चाहिए, एंड पर्सनल पब्लिक लाइफ के दम पे आप अपना पर्सनल एजेंडा नहीं पूरा करना चाहिए कि भाई अब शो ऑफ नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि तंबू गाड़ दिया, पिलर लगा दिया, फूल लगा दिया, ये सब नहीं होना चाहिए। आप यू नो, तो आई ऑल्सो हैव रिजर्वेशंस टुवर्ड्स दैट कि योर अचीवमेंट शुड नॉट बी समथिंग टू बी लाइक, हाँ अगर इट हैज़ एन एलिमेंट ऑफ शेयरिंग एन इन्फॉर्मेशन विद पीपल, है ना, देन इट इज़ ओके। बट सपोज यू नो कि भाई हमने इतना कुछ, ये वाला चीज़ है, अब ये पब्लिक के लिए गलत है या सही है, उसका जब आप पब्लिक इंटरेस्ट की बात करें दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट यू सी कि भाई इतना को करा, हमने किया है, हम 30 मार खाने, हमने ये कर दिया, हमने वो, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। वहाँ पे वो चीज़ होने से दम्भ दिखता है ना, वहाँ पे घमंड दिखता है। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, वो पब्लिक को भी बुरी लगती है, और ऑफिसर्स और सीनियर्स और जो भी हैं, पूरा समाज को भी बुरा लगेगा। तो दैट्स जेन्युइन। तो यही बात है। Okay, so that's a really nice explanation, sir. Now we're business end में जा रहे हैं हम. Just a few questions. So last में अभी पूछ रहे हैं मैं सबको. So what is your vision for a better India, sir? What loopholes are needed to be addressed? And what are your expectations from the youth when you look them after for a time of like 10 to 15 years? बड़ा डीप क्वेश्चन है ये, हाँ। और ऐसे मतलब रैंडम में देखिए जो बोलूँगा रैंडम बोलूँगा, बिकॉज यू हैव जस्ट पोस्टेड दिस क्वेश्चन टू मी। अ बेटर इंडिया will be, I believe, an India which will be bubbling with energy,
पॉजिटिव एनर्जी जो एक दूसरे को प्रमोट करे। अगर आप अच्छा कर रहे हैं और आप में टैलेंट है तो मैं अपनी एनर्जी आप में लगा दूंगा आपको उठाने के लिए, ना कि आप में से टांग के अपने उठने के लिए लगाऊंगा। तो वो इंडिया चाहिए, वो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, वो इंडिया चाहिए जो कि हर एक जो काम करे वो सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट को देख के ना करे, एक लार्जर इंटरेस्ट को देख के काम करे कि आज मैं अगर ये करता हूँ तो मेरा तो भला होगा जो होगा, बाकियों पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये चीज़ के लिए। जिस दिन हमारा देश के लिए सोच के करेगा, हर इंडिविजुअल देश का सोचेगा ना, उस दिन ना किसी को बड़ा आदमी को नहीं बोलेगा कि सर मेरा बेटा का वहाँ एडमिशन करा दीजिए ना, है ना, सर मेरा ये लाइसेंस निकलवा दीजिए ना, सर मेरे को ये मंदिर में आगे दर्शन करा दीजिए ना। क्यों भाई? और फिर दूसरी तरफ आप कहते हैं यार यहाँ बड़ा करप्शन है, यहाँ तो सब गड़बड़ी चल रहा है, सब अपना अपना नेपोटिज्म कर रहे हैं। भाई आपने क्या त्यागा है उस चाहत को? पहले वो आना चाहिए। तो मेरे सपने का भारत वो भारत है जो मैं आपके लिए जीऊँगा और आप मेरे लिए जिएंगे, है ना, वो होगा मेरे सपने का भारत। बिलीव मी, देशवासियों से बनता है, ब्रिजेस से नहीं बनता है, रास्तों से नहीं बनता है, खेतों खलिहानों से सिर्फ नहीं बनता है, वो आप और मेरा जो ह्यूमन रिसोर्स है ना उससे बनता है। तो मेरा एजेंडा भारत के लिए अगर कुछ कहे तो ये होता है कि द बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स जो है, ह्यूमन क्वालिटी है, उसको हम बेस्ट कैसे डेवलप करें। सिर्फ ये कॉलेज और स्कूल्स में नहीं होगा, ये घरों में तैयार होंगे। हमारे जो घर है वो सबसे बड़े मशीन है ह्यूमन रिसोर्स तैयार करने के। घर से बच्चा निकल के आ गया, बेटा बाहर जाके थूकना नहीं है, उसके लिए पोस्टर लगाने की क्या ज़रूरत है भाई कि यहाँ थूकिए मत? ये तो उसको पता होना चाहिए, दिस इज नेचुरल। उसके लिए पोस्टर लगाने की जरूरत पड़ी, ये कैसा देश है, प्लीज डू नॉट स्पिट हियर। आई मीन दिस इज नॉनसेंस यार, दिस कैन नॉट बी अ कंट्री। ये जब छोटी छोटी चीज़ों का आप अटेन कर लेंगे ना, आप देखिएगा फिर आप कोई रोकेगा नहीं। देश को हम सब यूँ एक दूसरे का हाथ पकड़ के यूँ ऊपर ट्रेजेक्ट्री में ले जाएंगे। और जब हम बात करते हैं विश्व गुरु की, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं होगा, बट वी हैव टू वर्क ऑन आवर ह्यूमन रिसोर्सेज। इट्स नॉट जस्ट बिल्डिंग खड़े करने से ह्यूमन रिसोर्स नहीं बनते, इट हैज़ टू बी, यू हैव टू वर्क अपॉन द बेसिक वैल्यू सिस्टम। जब हम भारतीयता की बात करते हैं, ये भारतीयता, ये जो हमारे जो संस्कार की बात करते हैं, ये सब कपड़े क्या पहनते हैं उससे नहीं होता, कौन से रंग के कपड़े, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। वो जो दिमाग का आपका एटीट्यूड क्या, अप्रोच क्या है, हाउ डू यू अंडरस्टैंड एंड डिसिफर थिंग्स, वो सिखलाई कौन करेगा? वो घर से शुरू होगा। ड्रग्स का बड़ा प्रॉब्लम है यार, हम ड्रग्स का प्रॉब्लम ही नहीं है गुरु। कौन बोलता है ड्रग्स का प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम दिमाग में है। वो घर से माँ ने बच्चों को नहीं सिखाया, पेरेंट्स ने नहीं सिखाया, टीचर ने नहीं सिखाया कि वो गलत चीज़ है, किसी ने उसको गाइड नहीं किया। ड्रग्स इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट, ड्रग्स इज़ अ सोशल प्रॉब्लम, सो ऐसी हर तरह का प्रॉब्लम। करप्शन इज नॉट अ प्रॉब्लम, गवर्नमेंट में करप्शन, सो आप पुलिस थाकिले पैसा लब ना लो भाई, पैसा आपनी पैसा দিব বিচাৰে বিকজ আপুনি গলত কাম কৰিব বিচাৰে। আপুনি সিটো কম কৰি দিয়ক, আপুনি গলত কাম কৰিব, আপুনি পইচা দিয়ে বেলেগ বেলেগ কাম কৰিব, তাৰপিছত গৈ নিজে ল'ৰাক আপুনি জ্ঞান দিব कि বেটা करप्शन কৰিব বেয়া, বহি টিভিত চাব সব ফালে करप्शन চলি আছে, কমিশন লৈ আছে, ইমান % লৈ আছে। अरे भाई आप अपनी जीवन में उतर के देखिए, आप क्या कर रहे हैं, रास्ते चलते देखिए। आप क्या उस एम्बुलेंस को जाने का रास्ता दिया आपने? आपको ज़्यादा जल्दी थी। एक जो बंदा रास्ता क्रॉस करेगा ना, रास्ता साबो जो ने गाड़ी चलाए, रास्ता साबो को आरू तेज कर दिए, आरू स्पीड बढ़ाई दिए गाड़ी टू। क्यों भाई? वेयर इज योर सेंसिटिविटी? अपनी निजक भावे कि मोर प्रॉब्लम आसे, मोर लगे सब सेंसिटिव होबो लागे, अपना सेंसिटिविटी तो कोत गोल। अपनी जेतिया खाना खाबो तेतिया दुटा रुटी ने फेलाई दिले, सब्जी इमान एरी दिले, तो इटू भाबा नहीं कि जे हनुमान मंदिर सामने जे 10टा बही थाके, इन्हें हाथ उठाई थाके कि कुछ दे दो यार, वो उसके लिए वो दिन भर का खाना था। इज इट नॉट करप्शन? इट इज़ नॉट वेस्टेज? वो तो कंट्री का रिसोर्स है विच यू आर वेस्टेड। दीज आर द थिंग्स, कंट्री विल बी बिल्ट अप लाइक दिस। जिस दिन देश ये समझना शुरू कर देगा जो बातें मैं कह रहा हूँ ना, बिलीव मी, फिर देश को कहाँ जा रहा है, कितना बढ़ेगा, उसका सोचने का ज़रूरत नहीं है, कोई रोक नहीं पाएगा फिर। तो अब जो बाकी देश, आप जापान वगैरह के बारे में देखिए, आप जिस तरह से सिविक सेंस और बेसिक एजुकेशन पे जो बुनियादी शिक्षा पे ध्यान दिया जाता है ना, ये चीज़ें हो जाए ना, अच्छे इंसान अगर हम बना लेना, बिलीव में अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर बन जाएंगे, है ना। अच्छे इंसान बनाना ज़रूरी है यार। ये हम कौन कितने पैसे कमाता है, इससे हम उसकी स्टेटस तय करते हैं, कौन किस पोस्ट पे बैठा है उसका स्टेटस हम उससे तय करते हैं। हो सकता है वो बंदा अपने लिए जी रहा है, वो किसी का भला नहीं करेगा, वो किसी ना किसी बहाने से आपका काम ना करने का बहाना दिखा देगा। बट वो बंदा देखिए, इसलिए किसी एक जगह मैं पढ़ा कि दोस्ती ना हमेशा हम्बल लोगों से करिए। जब ज़रूरत पड़ेगा ना, रात को आधी रात को आएंगे आपकी मदद करने। जो बड़े वाले हैं ना, वो फ़ोन ही नहीं उठाएंगे आपका, ये होता है। तो इसीलिए वो इंसान बनाना ज़रूरी है। क्या पोस्ट पे गए, कितना पढ़ाई किया, क्या डिग्री ले लिया, कितने पैसे कमा लिए, हम जब तक इन सब चीज़ों के साथ इज्जत को अटैच किए हुए हैं ना, देश कहीं नहीं बढ़ रहा है।
हम केकड़े के जाल में हैं, सब एक दूसरे को खींच रहे हैं। बट एक नेचुरल ग्रोथ है, जो डेथ तो बढ़ेगा, जैसे कि शरीर बढ़ता है वैसे देश भी धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। बट अगर आपको वो तेज़ी पकड़ना है तो इन बुनियादी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। दैट्स माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्री। एंड यूथ के बारे में आप जो बोले थे कि तो यूथ इज़ डेफिनेटली, आई हैव ग्रेट होप इन यूथ, आई हैव ग्रेट होप इन यूथ। मुझे बहुत भरोसा है। आज जैसे मैं बता रहा था, मैंने देखा है, अपने बड़ों को देखा है कि अभी आपसे भी थोड़ी देर पहले जब बात हुई थी ना, कि जब हम ठेले पे जाते हैं, भाई 10 रुपये किलो कुछ दे रहा है, सपोज आलू मान लो फॉर एग्जांपल 10 रुपये किलो दे रहा है, हम बोले 7 रुपये में देगा क्या? नहीं बाबू नहीं हो पाएगा, हाँ तो कैसे करेंगे, है तुम लोग ऐसे लूट मचा के रखा है। यार वो ठेले वाले ने क्या लूट मचा के रखा है यार, हाँ। लेकिन आप जाइए, पिज़्ज़ा लेके आएगा आपको, सर ये आपका पिज़्ज़ा सर 570 रुपये, 600 रुपये, कीप द चेंज। तो ये सब चीज़ें जब हमारा यूथ, आई बिलीव अब ये समझ रहा है एटलीस्ट। एंड आई एम सीइंग कि बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं, अरे यार ये तो बाजार में जाता है, ऐसे पैसे फेंक के आता है। पैसे फेंक के नहीं आता है, वो उससे नेगोशिएट करने में उसका मन नहीं मानता यार। जो बेचारा इतना मेहनत करके धूप में खड़ा होकर पूरे दिन रेडी लगाया हुआ है और उससे वो अपने घर चलाने की, उसके संग आपका भी नहीं मन मानेगा। मैं देखा आज का यूथ जो है ना, ये मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है। वो नहीं नेगोशिएट कर पाता है, और नेगोशिएट नहीं कर पाना उसका बैड क्वालिटी नहीं है, उसका ह्यूमन सेंसिटिविटी बेहतर हो गया आई बिलीव। वो नेगोशिएट कर नहीं पाता वाली बात नहीं है, वो नेगोशिएट करना नहीं चाहता है। उसे पता है कि यार ये बंदा कितना मेहनत करके ये चीज़ करा है। तो दैट्स वाई ये सेंसिटिविटी मैंने पर्सनली देखा है, और ये लैक ऑफ सेंसिटिविटी एक जनरेशन पहले देखा है, पहले भी देखा है, हमारी जनरेशन में भी देखा है कि सो आई बिलीव कि द अपकमिंग जनरेशन जितने भी हैं, द बेटर जनरेशन, और ये जनरेशन ही देश का हाथ पकड़ के ऊपर लेके चलेंगे। दिस इज़ डेफिनेटली अ मच बेटर जनरेशन देन इवन माई जनरेशन। हम जो जनरेशन है हमसे बेहतर है, जो अभी आप लोग हैं और आपसे छोटे हैं। यू गाइज आर रियली गुड एंड अ बेटर जनरेशन, एंड कंट्री इज़ गोइंग टू बी इन रियली गुड हैंड्स। सचमुच सर? नहीं एकदम इसमें करेंगे आप, अच्छा करेंगे आप लोग। So goosebumps. So last question sir, আপোনাক সুধো, আপুনি ডেপুটেশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে, অসমখন ইমান সোনকালে এৰি যাব ছাৰ? नहीं देखो, अभी डेपुटेशन का मेरा इतिहास आप खोल के देखो। मैं जब धुबरी में एसपी था ना, जेतिया मैं धुबरीत एसपी आसलो, तेतिया मैं प्रथम अप्लाई करिছিলোঁ। এতিয়া কৰা নাই, মানুহ এনেকৈ মিলাই ভিলাই যি ইচ্ছা কাহিনী বনাই দিয়ে, নেৰেটিভ ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে। মই প্ৰথম যেতিয়া এপ্লাই কৰিছোঁ, ইট ৱাজ ফৰ ৰিয়েল ৰিজনছ ইয়াৰ। দেৰ ৱাজ আ প্ৰব্লেম, এটা পাৰ্চনেল ইস্যু হয় না, ঘৰত আছে ইস্যু আছে অলপমান। মোৰ দেউতা আছে, দেখো হি ইজ 85, আই হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইয়াৰ চেঞ্চিটিভিটি। মই দুনিয়াৰ মানুহক চেঞ্চিটিভিটি দেখাই আছোঁ, নিজৰ ঘৰৰ চেঞ্চিটিভিটিটো ক'ত যাব? तो इट हैज़ कम टू अ सिचुएशन जो इफ़ आई एम नॉट एबल टू स्टैंड फॉर माई फादर हु इज़ नाउ 85, यार लानत है मुझे ये सर्विस करने में, यार एक सर्विस में रहने में। मैं क्या दुनिया का सेवा करूँ जब अपने घर में अपने पिताजी का ही सेवा नहीं कर सकता, है ना? तो ये तो दिखावा है ना, आई विल बी प्लेइंग फॉर टू द गैलरी। तो मैं उस ईमान को कैसे लेके पापा को रोज़ फेस करूँगा जब वो कहते यार मुझे गाँव पे रहना था, घर पे यार घर बनाना है हमारा, बताया मैं पहले ही बोला हूँ, मिट्टी का घर जहाँ तहाँ गिर जाता है, बाथरूम नहीं, टॉयलेट नहीं। तो एक बेसिक चीज़ें हैं लाइफ में जो खड़ा करना है। हाँ, और अनफॉर्चुनेटली, बट मैं सच बता रहा हूँ, मैं लोगों से बड़ा कहता हूँ ना, मेरे दोस्तों से कहा, ये पता है मेरे पास मैंने कोई लोन नहीं लिया, मेरा कोई EMI नहीं है। तो बोलता बेटा तूने कुछ किया भी तो नहीं जीवन में। सही है यार, कुछ है भी नहीं मेरे पास। तो लाइफ है, एक लाइफ चलने के लिए भी तो चाहिए होता ना कुछ चीज़ साथ में, तो उसको कुछ चीज़ें तो करनी पड़ेंगी, है ना? तो अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया कि मैं काम में इतने साल इतना व्यस्त रहा ना, सही बता रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी के बेस्ट टाइम्स ना आई हैव गिवन टू माई वर्क, ओके, एंड मैंने इन्जॉय किया है। उल्टा में देखिए आपका प्यार, हम यहाँ बैठे हुए हैं, आई हैव गॉट दैट। इट्स नॉट दैट आई हैव नॉट अर्नड एनीथिंग, आई हैव अर्न लॉट ऑफ थिंग्स, इसका कोई पैसे में मोल नहीं है किसी चीज़ में, बट कुछ चीज़ें हैं जो पर्सनल लाइबिलिटीज़ है, इसको पूरा करना है। दैट्स वाई आई हैव टू बी देयर, आई हैव टू गो देयर, आई हैव, बिकॉज देयर आर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देम ऑल्सो। उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है मेरे से ना। मैं घर बड़ा हम्बल फैमिली से आता हूँ, कोई बहुत बड़ा लाट साहब का घर का नहीं हूँ, है ना? तो वो ये सोचते हैं यार कि देखो भैया हमारे IPS बन गए तो अब अपनी दुनिया में मगन हो गए, है ना, हम लोग को भूल गए। सही सोचते हैं, दे नॉट रॉन्ग व्हेन दे थिंक लाइक दैट, कि अब ये ज़रूर है कि मैं कोई मज़ा करने में मगन नहीं हूँ, मैं काम ही कर रहा हूँ, लेकिन हाँ उनके भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। मैंने ज़िंदगी के अपने 10-12 साल प्रॉपरली, या मे बी मोर, मैं 2005 से जॉब में हूँ, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस में भी था। तो इतने साल तो मैं कर ही रहा हूँ, तो थोड़ा तो वक्त होता ना यार। अब पूरे दिन घर में घूमते, कभी तो बाहर घूमते, थोड़ा सा तो घर पे जाके भी साफ़ सफाई करना पड़ता है ना। तो वो थोड़े से वक्त के लिए मुझे घर जाना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने अप्लाई किया था तब धुबरी में। लेकिन बाद में फिर चेंज होता गया, कुछ हुआ,
अब क्योंकि मैं फिर वापस आ गया अब गुवाहाटी में, और यहाँ जो अभी प्रोफाइल है, ठीक है, ये कोई भी देख लेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी प्रोफाइल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसी के ना होने से ना चले, यू नो, नोबडी इज़ इंडिस्पेंसिबल। तो मैं भी आई एम जस्ट अ स्मॉल पर्सन इन दिस होल सिस्टम, तो मेरे जाने ना जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ मेरे घर को फ़र्क पड़ता है, मेरे होने ना होने से मेरे गाँव को फ़र्क पड़ता है, ज़रूर पड़ता है। तो जिसको फ़र्क पड़ता है उसके लिए भी थोड़ा काम करना चाहिए ना, तो यही सोच के मैंने अप्लाई किया। लेकिन लेट्स सी अभी जैसे थिंग्स मूव कर, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, सो आई एम थिंकिंग अ लॉट, काफ़ी कुछ चल रहा है दिमाग में अभी, तो आई एम जस्ट वेटिंग, लेट्स सी। बट आई विल हैव टू स्टैंड विथ माई फैमिली, आई विल हैव टू स्टैंड विथ माई विलेज, आई विल हैव टू स्टैंड विथ माई पीपल, दे हैव एक्सपेक्टेशंस एंड आई कैन नॉट लेट देम डाउन, सो मेरा जाना ज़रूरी है। So you need to stand with his family, but many hearts will break in Assam as well. It will not break because you know, see, मेरे जैसे ना कई लोग हैं, लेकिन मेरे घर के पास मैं अकेला हूँ मेरे भाई, यू नो, मेरे जैसे यहाँ पे कितने ऑफिसर्स हैं, बट मेरे पिताजी का मैं अकेला ही हूँ ना, जो उनके लिए करूँगा, मेरे गांव के लिए मैं अकेला हूँ, मेरे परिवार के लिए मैं अकेला हूँ, तो दे नीड मी रियल टाइम में, फिजिकली दे नीड मी टू बी देयर विद देम, एंड बिलीव मी, जो भी अगर यूपीएससी या आईपीएस को एक अचीवमेंट माना जाए तो उनके लिए बस एक फार्स होकर रह जाएगा। मेरे गांव का घर का कोई बच्चा नहीं बनेगा आईपीएस, बोलेगा देखो आनंद भैया बने ना आईपीएस, अपनी ज़िंदगी में मगन है, क्या किया उन्होंने घर के लिए, क्या किया गांव के लिए। तकलीफ़ होता है भाई, हाँ सीरियसली तकलीफ़ होता है। और हम लोग बिहारी लोग ना थोड़ा, जैसे आसाम के लोग इमोशनल होते हैं, बिहारी भी बड़े इमोशनल होते हैं, है ना, तो दैट हैज़ बिकम एन इशू। इसीलिए आई थिंक आई रियली नीड टू गो, एंड इफ़ आई एम एबल टू कन्विंस माई अथॉरिटीज़, वेल एंड गुड, नहीं whatever ways, but I'll have to be with my family and the village, you know, it's really need। तो इसीलिए मैंने अप्लाई किया, बट नथिंग अगेंस्ट एनी वन फॉर दैट, यू नो, इट्स नॉट कि मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ तो अपनी मौसी से नफरत थोड़ी करता हूँ, यू नो, तो इट्स नॉट लाइक दैट, तो ऐसा। Sir, thank you so much for your time. It was really nice talking to you, sir. I hope my questions were good enough. It was good means it was very incisive एकदम and to the point, and I liked it because आपने जो क्वेश्चन पूछा मुझे भी लगा कि I could express a lot of my feelings about it, and you gave me an opportunity to vent out lot many things and my ideas about lot of things। तो बात करने से ही बात बनती है। Correct, sir. So thank you so much again. Thank you so much. Thank you. So viewers, আপুনি চালে এতিয়া আমাৰ এই পডকাষ্ট বা ইণ্টাৰভিউ আপুনি যি ক'ব বিচাৰে আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰৰ সৈতে। আজিৰ এপিছড ইয়াতে সামৰণি কৰিম। আমি আৰু এটা এপিছড আনিম, আমাৰ সৈতে আৰু কোনোবা গেষ্ট থাকিব। চাই থাকক দ্য ইউথ। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ।